Hello everyone, this is your second part of platyhelminths, and in this second part of platyhelminths we are going to talk about the remaining general characters of platyhelminths, plus I will be talking today about a life cycle of Fasciola hepatica. These are the two things that we will discuss and will try to cover up in today's video. So starting from the remaining part of the general characteristics, the first general characteristics that we will discuss today is nervous system. Okay, so their nervous system is considered to be the most primitive because इससे पहले जितना भी फाइलम हम लोगों ने पढ़ा है, in those phylums we did not see any kind of nervous organ, you can say any kind of organ present which as a whole does the regulation of any kind of nervous activity. We have not seen till now. We have seen there came some neurons, but those neurons did not get aggregate to form an organ. Okay, so here this is the first phylum where we can see that the neurons got aggregated to give rise to a organ. Okay, and underdeveloped type of nervous system, most primitive underdeveloped type of nervous system, because first phylum to have this kind of organ, especially found in free living forms. Okay, that means Planaria dugacia, especially it is found to be very much well developed in those forms. Okay. Their system is also called as ladder-like nervous system because you can see it looks like some kind of ladder. Let's go into the structure. This portion is called as cerebral ganglia, which is equivalent to our brain. Okay, that means most of the control, most of the nervous activity will be operated or will be regulated by whom? By cerebral ganglia. Okay, so this is equivalent to brain. Cerebral ganglia. From cerebral ganglia you can see comes out two nerve cord. These are called as what? Longitudinal nerve cord, because they are running in the longitudinal axis of the body. Two longitudinal nerve cord are connected by some, you can see red color lines I have given, margins I have given. These are called as transverse commissures. So two longitudinal nerve cord are connected by transverse commissures, and from the lateral side of the longitudinal nerve cord comes out some kind of small nerve like projection called as lateral nerve. So this is how their nervous system is present in Planaria or Dugacia. Okay, we talked about Planaria and Dugacia in the last lecture. As well as I have given another information from the entrance point of view is that surrounding the mouth there is an organ present called as auricular organ, which is basically what? Chemoreceptor. Okay, that means this organ has the ability to check the chemical nature of its surrounding. Okay, which helps them to choose their habitat. That means we know that Planaria lives in fresh water. Now how this Planaria is judging what is fresh water and what is not? With the help of auricular organ, because fresh water will have less acidity, is not it? So under that circumstances, with the help of this organ, it can judge its surrounding, it can choose its habitat, and it can live in a suitable environment where it will not have any kind of problem and the growth will be better. Okay, moving on to the next part. इसका note तुम लोग आराम से देख के बना लो. So this is the next part of your general characteristics, and in this part of general characteristics, first we will start from the heading called reproduction. In reproduction you can see I have written that they are what? They are hermaphrodite or monoecious. Okay, so mostly, yeah, you can say most of them are hermaphrodite or monoecious. Okay, that means in one body there is both the male reproductive system as well as female reproductive system, except schistosoma, which is also called as what? Blood fluke. Okay, so in schistosoma and blood fluke, we will see that if we have written exception, that simply means that these animals are what? These animals are unisexual. That means the male का body अलग, female का body अलग, जबकि ये लोग bisexual. That is, in one body only they have both the male reproductive system as well as female reproductive system. Okay, so this species schistosoma, for a very long period of time, scientists have considered, or the founder of this species have considered this species to be hermaphrodite as well. But in the year 1851, there was a person called Theodore Bilharz. Okay? He observed this animal with absolute precision,
and when he observed this animal with absolute precision, that was the time when he could discover that this animal is not a hermaphrodite, but this animal is a unisexual animal, that is male is different, female is different. Okay, but why that confusion was there till 1851, till this person discovered this species? Why there was this confusion that this animal is what? This animal is a hermaphrodite. ये कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इससे समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर एक मेल का, ठीक है। तो मेल में मैंने अच्छे से यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, माउथ सराउंडेड बाय ओरल सकर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। देन कॉमन जेनिटल पोर यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेल फीमेल अलग है। कॉमन जेनिटल पोर किन में होता है? जो हर्माफ्रोडाइट होता है उनमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जेनिटल पोर का जरूरत नहीं है क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है। क्या प्रेजेंट है? वेंट्रल सकर। वेंट्रल सकर को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, क्या? एसिटाबुलम। ओके, अच्छा। नीचे है एक्सक्रीटरी पोर। तो ये तीन स्ट्रक्चर, माउथ सराउंडेड बाय ओरल सकर, वेंट्रल सकर एंड एक्सक्रीटरी पोर, ये कॉमन है फेशियोला हेपाटिका से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेल है, मेल का क्या प्रेजेंट है? वेंट्रल सकर के नीचे एक कैनल के जैसा प्रेजेंट है एट द मिड वेंट्रल सेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। गायनाकोमॉर्फिक कैनल लोकेटेड, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिड वेंट्रली, मिड वेंट्रली, ठीक है। मेल का मिड वेंट्रल रीजन में एक कैनल प्रेजेंट है जिसका नाम है गायनेकोमॉर्फिक कैनल, और उस गायनेकोमॉर्फिक कैनल के अंदर घुसा हुआ रहता है कौन? फीमेल। ये जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया है वो है फीमेल, और जो ब्लैक में ड्रॉ किया है वो है मेल। और मेल का मिड वेंट्रली एक कैनल प्रेजेंट है और उस कैनल के अंदर फीमेल घुस के रहता है। इसलिए 1851 से पहले जो भी इस ऑर्गेनिज्म को कोई देखता था तो वो इसको क्या सोचता था? वो इसको हर्माफ्रोडाइट ही सोचता था। लेकिन बाद में थियोडोर ने जब अच्छे से देखा तो उसको समझ में आया कि ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं, ये दो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रहता साथ में है। फीमेल मेल के गायनेकोमॉर्फिक कैनल के अंदर घुस के रहता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ये एनिमल जो है ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। एक और चीज, अगर तुम लोग को पूछा जाए हाउ मेनी एपर्चर्स, एपर्चर्स APERTURES, हाउ मेनी एपर्चर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड फ्लो, कितना बोलोगे? एपर्चर का मतलब क्या है? एपर्चर का मतलब है बॉडी का जो हम लोग का इनर रीजन है वो आउटर एनवायरमेंट के साथ क्या क्या होल के थ्रू, होल HOLE, होल के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है एपर्चर का मतलब। जैसे कि हमारे में कितना एपर्चर है? एनास एक एपर्चर है, हमारा इंटरनल बॉडी आउटर एनवायरमेंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली वाया एनास, माउथ, नोज, है कि नहीं। तो ये सब हमारा एपर्चर्स हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को एपर्चर बोलता है कि इनर बॉडी आउटर एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच, मतलब डायरेक्टली कोई होल है क्या जिसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, कोई भी तरीके का इंटरेक्शन हो। तो अगर तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एपर्चर्स आर प्रेजेंट इन फेशियोला हेपाटिका, क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। क्या 3? एक तो माउथ इंटरनली कनेक्टेड, दूसरा एक्सक्रीटरी पोर इंटरनली कनेक्टेड, एंड इन केस ऑफ फेशियोला हेपाटिका कॉमन जेनिटल पोर भी था, वो भी तो इंटरनली कनेक्टेड है। तो इन केस ऑफ फेशियोला हेपाटिका हाउ मेनी एपर्चर्स डू फेशियोला हेपाटिका हैज? 3, माउथ, कॉमन जेनिटल पोर, एक्सक्रीटरी पोर। अगर पूछा जाए हाउ मेनी एपर्चर्स आर प्रेजेंट इन स्किस्टोसोमा तो क्या बोलोगे? 2, एक होगा माउथ, दूसरा होगा क्या? एक्सक्रीटरी पोर। एक है माउथ, दूसरा होगा एक्सक्रीटरी पोर, क्योंकि कॉमन जेनिटल पोर इसमें है नहीं। तो ये कंफ्यूजन लगाने का कोशिश क्वेश्चंस में हो सकता है, इस चीज को अच्छे से क्लियर करके रखना। और जो फेशियोला हेपाटिका का डायग्राम तुम लोगों ने पहले ड्रॉ किया है उसमें यू कैन ऑल्सो एड दिस पॉइंट कि उसमें 3 एपर्चर्स है, माउथ है, देन कॉमन जेनिटल पोर, एक्सक्रीटरी पोर। एन एपर्चर का मतलब एनी होल और एनी पोर थ्रू विच द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आउटर एनवायरमेंट, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का डिस्कशन। फिर कुछ छोटा कैरेक्टर से उनमें चलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, समझ में आ रहा है? इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल नहीं। इनसिटू फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे एक्सेप्ट प्लेनेरिया, क्योंकि प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ मेनी लार्वल स्टेजेस, मतलब एक ही लाइफ साइकिल में, जैसे कि ऐसा होता है कि फ्रॉग का टेडपोल एडल्ट, एग, टेडपोल एडल्ट, इसमें क्या हो जाएगा? एग के बाद एक लार्वा, फिर उस लार्वा से दूसरा लार्वा, फिर तीसरा लार्वा, फिर चौथा लार्वा, फिर जाके एडल्ट। तो एग और एडल्ट के बीच में 4 लार्वा आ गया, और चारों लार्वा एक दूसरे से देखने में अलग होगा। हेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा? शोज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पहला जो लार्वा होगा उसका मॉर्फोलॉजी अलग, देखने में अलग,
उससे जब सेकेंड लार्वा बनेगा उसका मॉर्फोलॉजी अलग, देखने में अलग, थर्ड देखने में अलग, फोर्थ देखने में अलग, एडल्ट देखने में अलग, तो हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से देखने में डिफर कर रहा है. सो व्हेन देयर इज दिस डिफरेंस प्रेजेंट इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वी कॉल इट polymorphism. Okay, so this organism shows polymorphism because they have several larval stages in one life cycle. ठीक है, वो Fasciola hepatica में समझ में आएगा. अभी स्टार्ट करेंगे इसके बाद. एक और पॉइंट लिख के रखना है that they show tremendous power of regeneration. ठीक है, स्पेशली इन टीनिया प्लेनारिया. ठीक है, टीनिया और प्लेनारिया जो है इनका बॉडी को अगर हम लोग काट दे, ये लोग रिजेनरेट करके बाकी पोर्शंस को बना सकता है. प्लेनेरिया तो ऐसे ही सकता है क्योंकि प्लेनेरिया में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, एक बॉडी दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, फिर जो हाफ है वो पूरा एक एनिमल बन रहा है, माने रीजेनरेट कर रहा है. और टीनिया सोलियम जो स्पीशीज है उसमें भी रीजेनरेशन का एबिलिटी प्रेजेंट है. बाद में कभी अगर टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल पढ़ाया तो उसमें आई विल टीच यू अबाउट कि कैसा होता है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, कैसा होता है रीजेनरेशन इन टीनिया, लेकिन वो बाद में. ठीक है, ये कैरेक्टर्स लिख लो. अभी हम लोग लाइफ साइकिल पे मूव करते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हेपाटिका अभी शुरू करेंगे. ठीक है, इसका नोट बना लो. तो यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लिए हैं. ठीक है, एंड लाइफ साइकिल में पहला ये जो अभी बोर्ड मैंने खाली रखा है क्योंकि इसमें मैं कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा रिगार्डिंग फेशियोला हेपाटिका. देन वी विल मूव टू द मेन लाइफ साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन. फेशियोला हेपाटिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर फ्लूक. क्यों लिवर फ्लूक बुलाते हैं वो भी मैं बताऊंगा. लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेशियोला हेपाटिका वाज गिवन बाय दिस पर्सन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. एडल्ट फॉर्म, इस फेशियोला हेपाटिका का जो एडल्ट फॉर्म होगा इट कॉजेज लिवर रॉट. ठीक है कि नहीं, इन प्राइमरी होस्ट. अभी प्राइमरी होस्ट कौन है और उसको प्राइमरी होस्ट क्यों बुला रहे हैं वो भी समझाऊंगा. लिवर रॉट का मतलब क्या होता है, रॉट का मतलब खराब होना होता है. ठीक है ना, तो लिवर को खराब कर देता है फेशियोला हेपाटिका का एडल्ट फॉर्म, लिवर को खराब कर देता है इन प्राइमरी होस्ट. इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, लिवर फ्लू, बिकॉज ये लिवर को डैमेज करता है. ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ये जो बीमारी है प्राइमरी होस्ट, इसका प्राइमरी होस्ट है कौन, इसका प्राइमरी होस्ट है शीप, गोट, ये सब है इसका प्राइमरी होस्ट. ठीक है ना, तो इस शीप या गोट का जो लिवर को खराब कर देता है इसलिए इसको लिवर फ्लूक बोला गया है. ठीक है, और ये जो बीमारी लिवर शीप एंड गोट का लिवर में ये करता है, लिवर को डैमेज कर देता है, इस बीमारी को हम लोग लिवर रॉट भी बुला सकते हैं, या फिर हम लोग फेशियोलियासिस भी बुला सकते हैं, या फिर डिस्टोमाटोसिस भी बुला सकते हैं. दीज आर ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ लिवर रॉट. ये सब लिवर रॉट का ऑल्टरनेट नाम है. ठीक है, अच्छा, अब ये जो एनिमल है फेशियोला हेपाटिका, हमको पता है फेशियोला हेपाटिका जो है F.H लिखा है, ये क्या है, ये एनिमल है एक डाइजेनेटिक एंडोपेरेसाइट. ठीक है, तो ये जो डाइजेनेटिक एंडोपेरेसाइट है इसका मतलब क्या है, एंडोपेरेसाइट का मतलब अंदर घुस के पैरासिटिज्म करेगा, ये लास्ट वीडियो में समझाया है. डाइजेनेटिक का मतलब इसको अगर अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है, इसको अगर अंडा से एक एडल्ट बनना है तो इसको दो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके अपना लाइफ साइकिल को करना पड़ेगा. दैट मीन्स डाइजेनेटिक. दैट मीन्स इस पैरासाइट का एक होस्ट नहीं, इस पैरासाइट का दो होस्ट है. किसी पैरासाइट का अगर एक होस्ट है तो उसको हम लोग मोनोजेनेटिक बुलाते हैं, ये डाइजेनेटिक है. ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें कितना होस्ट है, दो होस्ट है. ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के ये एंडोपेरासिटिज्म करेगा. तो ये जो दो होस्ट है, दो होस्ट में एक होस्ट हो जाएगा कौन, एक होस्ट हो जाएगा प्राइमरी होस्ट, एक होस्ट हो जाएगा सेकेंडरी होस्ट, या फिर इसको हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट भी बुलाते हैं. सेकेंडरी होस्ट को हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट भी बुलाते हैं. ठीक है, तो क्या बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग प्राइमरी होस्ट, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं शीप, गोट एक्सेट्रा, ऐसा ग्रेजिंग एनिमल जो लोग घास उस खाता है एंड जिनका बॉडी का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, जैसे शीप, गोट, इनका बॉडी का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, प्लस ये लोग घास खाने वाला एनिमल है. ठीक है, एंड सेकेंडरी होस्ट जो है वो इसका है कौन, स्नेल. ठीक है, और प्लेनोर्बिस स्नेल का ही एक स्पीशीज है. ये सब है इसका सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है, तो क्या बेसिस है जिसके ऊपर हम लोगों ने इन दोनों को प्राइमरी बोला और इसको हम लोगों ने सेकेंडरी बोला है. क्या बेसिस है, बेसिस ये है जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी, जिस होस्ट के बॉडी के अंदर एक एंडोपेरेसाइट घुस के अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जिसके अंदर एडल्ट फॉर्म पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्राइमरी होस्ट बुलाते हैं. तो एक इसके अंदर हम लोग को मिलेगा क्या, इसके अंदर हम लोग को मिलेगा
एडल्ट फॉर्म ऑफ क्या, एडल्ट फॉर्म ऑफ एंडोपेरासाइट, ठीक है। और दूसरा ये जो एडल्ट फॉर्म है, ये एडल्ट फॉर्म इस होस्ट के अंदर क्या करेगा, इस होस्ट के अंदर करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों जिस होस्ट के अंदर होता है उसको हम लोग प्राइमरी होस्ट बुलाएंगे, ठीक है। दैट मींस फिस्टुला हेपाटिका का एडल्ट फॉर्म इन दोनों के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड फिस्टुला हेपाटिका का एडल्ट फॉर्म इन दोनों के अंदर क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अगर मुझे पूछो कि सर इन दोनों के बॉडी के अंदर ये एडल्ट फिस्टुला हेपाटिका कहाँ रहता है, तो इन दोनों के बॉडी के अंदर जो एडल्ट फिस्टुला हेपाटिका है, वो एडल्ट फिस्टुला हेपाटिका रिसाइड्स इन दी बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो है वो लिवर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज लिवर ही तो बाइल बनाता है। इसलिए ये लोग बाइल डक्ट में रह के ये लोग बाइल का इनफ्लो को क्या करेगा, इनफ्लो आउटफ्लो को ये ट्रैवल करेगा, जिसके वजह से लिवर में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाई लिवर रॉट प्राइमरी होस्ट। आई होप कनेक्शन बना है। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल प्लेनोर्बिस, ठीक है। इसको सेकेंडरी होस्ट बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं जिसके अंदर लार्वेल फॉर्म हम लोग को मिलेगा, लार्वेल फॉर्म ऑफ एंडोपी माने एंडोपेरासाइट। दूसरा लार्वेल फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लार्वेल फॉर्म करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लार्वेल फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो जिस होस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर जिस होस्ट के अंदर एंडोपेरासाइट का लार्वेल फॉर्म प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग स्नेल या प्लेनोर्बिस हम लोग है अंडर दिस, लेकिन ये जिसके अंदर होगा उसको हम लोग सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक और पॉइंट मिलेगा कि स्नेल या प्लेनोर्बिस के अंदर जब ये रहेगा, लार्वेल फॉर्म जब रहेगा तो कहाँ रहेगा, जनरली कहाँ रहेगा, जनरली इन दी मसल्स ऑफ या जनरली इन द मसल्स नियर बाय एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। स्नेल का एलिमेंट्री कैनल के आसपास का जो मसल है उस मसल में, ठीक है कि नहीं, रहेगा कौन, ये जो सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है, वहां पे रहे सेकेंडरी होस्ट का एलिमेंट्री कैनल के आसपास का जो मसल्स है उस मसल्स में रहेगा लार्वेल फॉर्म्स ऑफ फिस्टुला हेपाटिका, ठीक है। शीप या गोट का बाइल डक्ट में रहेगा एडल्ट फॉर्म ऑफ फिस्टुला हेपाटिका, ठीक है। बाइल डक्ट में रह के एडल्ट फॉर्म ऑफ फिस्टुला हेपाटिका करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मसल्स नियर बाय द एलिमेंट्री कैनल में रह के लार्वेल फॉर्म्स करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये बेसिस है कि किसको सेकेंडरी होस्ट बुलाया जाए, ये दो बेसिस है, ठीक है। किसको प्राइमरी होस्ट बुलाया जाए, ये दो बेसिस है। उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होगा वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। इसलिए देखो, मसल्स जनरली जब लार्वा खाएगा तो लार्वा कितना मसल खाएगा, कम ही खाएगा, वो मसल रीजेनरेट कर जाएगा। इसलिए स्नेल में कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन एडल्ट में, ठीक है ना, लेकिन जो एडल्ट है वो एडल्ट कहाँ रहता है, शीप या गोट का बाइल डक्ट में, और उसका खाना का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देगा तो बाइल प्रॉपर्ली लिवर से नहीं निकल पाएगा, तो उसके वजह से लिवर को डैमेज होना शुरू हो जाएगा। एंड लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिवर अगर डैमेज हो जाए तो दिस इज अ सीरियस कंसर्न। एंड शीप गोट ये सब हमारे लाइफ में कितना अहमियत रखता है, कितना कॉस्टली एनिमल है। अगर इन सब का लिवर डैमेज हो गया, ये सब मर जाए तो इट्स आवर लॉस। समझ में आया ना। इसलिए इस डिजीज को एक प्रॉपर नाम दिया गया है, आइडेंटिटी दिया गया है, जो शीप या गोट में एडल्ट फिस्टुला हेपाटिका करता है। तुम लोग बोल सकते हो कि सर स्नेल में भी तो लार्वा मसल खा लेता है, स्नेल में भी तो कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। नहीं होता है, क्योंकि लार्वा कम मसल, छोटा है, कम खाता है, वो रिजेनरेट कर जाता है। स्नेल का मसल वो रिजेनरेट कर जाएगा, तो स्नेल में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस स्नेल हमारा कोई इकोनॉमिकली इतना बेनिफिटिंग एनिमल है नहीं, इसलिए इसमें बीमारी है नहीं है, उसके ऊपर हम लोग को रिसर्च करके भी कोई फायदा नहीं है या नहीं किया गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है। अब हम लोग लाइफ साइकिल शुरू करेंगे, एंड किसी पॉइंट से तो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है, ठीक है, कि एक एडल्ट कैसे अपना बच्चा बनाता है और वो बच्चा वापस कैसे एडल्ट बनता है, यही तो लाइफ साइकिल है जो हम लोग को पढ़ना है। तो वी विल स्टार्ट आवर लाइफ साइकिल फ्रॉम शीप एंड गोट। हम लोग ये यहां से स्टार्ट करेंगे कि एडल्ट जो शीप या गोट के बाइल डक्ट में है वहां पे रहते हुए वहां से उसका लाइफ साइकिल कैसे शुरू होता है और कैसे वो एडल्ट से वापस एक एडल्ट बनेगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। इसका अच्छे से नोट बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो मैंने बोला था वहां से ही स्टार्ट किया है कि एडल्ट्स जो है वो एडल्ट्स रिसाइडिंग इन द बाइल डक्ट ऑफ शीप, ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी होस्ट शीप है, उसका बाइल डक्ट में एडल्ट रहता है, गेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी,
ठीक है, वहां रह के बाइल खा के, लिवर का टिश्यूज खा के जो एडल्ट है वो एडल्ट क्या करेगा, अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेगा। सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने के बाद कुछ पॉइंट्स हम लोग को समझना है। क्या पॉइंट समझना है? एडल्ट जो है फिशोला हेपाटिका वो तो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके के एनिमल में जो हर्माफ्रोडाइट होता है, उन एनिमल्स में एक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जिस इफेक्ट को हम लोग क्या इफेक्ट बुलाते हैं? प्रोटेंड्रस इफेक्ट। प्रोटेंड्रस इफेक्ट में क्या देखेंगे, एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाएगा, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, मेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, फीमेल पार्ट डेवलप्स लेटर, ठीक है। ये क्यों होता है? सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन का चांस ना रहे, ठीक है ना। एक तो वो केमिकल, सरफेस केमिकल मैंने समझाया है, उसके वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऊपर से उसके ऊपर में भी बॉडी ने एक और जुगाड़ लगाया है, क्या कि मैं एक ही टाइम पे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप नहीं करूंगा, मेरे बॉडी में दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन मैं एक टाइम में एक को डेवलप करूंगा, दूसरे टाइम में दूसरे को डेवलप करूंगा, ठीक है। एंड एनिमल्स जो हर्माफ्रोडाइट होता है, उन एनिमल्स में हम लोग को प्रोटेंड्रस इफेक्ट ही देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पे मेल पार्ट पहले डेवलप होगा, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होगा। फ्लावर्स में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है, मेल पार्ट बाद में डेवलप होता है, लेकिन फ्लावर्स में दोनों देखने को मिलता है, प्रोटेंड्रस भी मिलता है, प्रोटोगाइनस भी मिलता है, ठीक है। प्रोटोगाइनस बोल के भी एक वर्ड है, प्रोटोगाइनस। तो इस प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि फीमेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, मेल पार्ट डेवलप्स लेटर इन अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो फ्लावर में प्रोटोगाइनस भी देखने को मिलता है ज्यादा, लेकिन प्रोटेंड्रस भी देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल में प्रोटोगाइनस मिलता ही नहीं देखने को। फीमेल पार्ट कभी भी इन एनिमल्स, फीमेल पार्ट कभी भी पहले डेवलप नहीं होता है। इन एनिमल्स अगर कोई हर्माफ्रोडाइट एनिमल है तो पहले मेल पार्ट ही डेवलप होगा, बाद में फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को प्रोटेंड्रस इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट। अब इस चीज को समझो, जब मेल पार्ट डेवलप हो जाएगा तो मेल पार्ट का देखो, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के आगे ये है एम्पुला, टेस्टिस स्पर्म बना के एम्पुला में डालता है, एंड एम्पुला से जब सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है कोई भी एडल्ट, तो उसके एम्पुला से इस तरीके का एक कैनल के जैसा स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसका नाम क्या है? इवर्टेड साइनस। पेनिस के जैसा एक स्ट्रक्चर एम्पुला से निकल के बाहर की तरफ आएगा, इवर्टेड साइनस, ठीक है, इसका नाम है। जबकि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में देखो क्या है, लोरेंट्स कैनल बोल के एक है, ठीक है, उसके पीछे है यूटेरस, ठीक है। यूटेरस से दो कनेक्शन है, एक है ओवेरी का कनेक्शन, ओवेरी एग रिलीज करता है, ठीक है, जैसे टेस्टिस स्पर्म बनाता है वैसे ओवेरी एग बनाता है। ओवेरी वो एग बना के फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां भेजेगा? यूटेरस में। यूटेरस से एक और कनेक्शन है स्पर्माथिकल डक्ट, स्पर्माथिका। स्पर्माथिका क्या होता है? स्पर्माथिका होता है स्पर्म स्टोरिंग चैम्बर, ठीक है। स्पर्माथिका में स्पर्म को स्टोर किया जाता है। अब इस चीज को समझो, पकड़ लो, एक ही एनिमल है जिसके बॉडी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पे लेट्स कंसीडर ये जो मेल पार्ट है, ये दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फिशोला हेपाटिका नंबर 1 एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फिशोला हेपाटिका नंबर 2। समझ में आया? मतलब ये एक अलग फिशोला हेपाटिका में कंसीडर कर रहा हूं, ये एक अलग फिशोला हेपाटिका में कंसीडर कर रहा हूं। तो इस फिशोला हेपाटिका का जो 1 है, उसका जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा तो उसका मेल पार्ट डेवलप करेगा और मेल पार्ट का इवर्टेड साइरस बनेगा। वो इवर्टेड साइरस क्या करेगा? अपना जो स्पर्म है वो इवर्टेड साइरस इस दूसरे फिशोला हेपाटिका का जो लोरेंट्स कैनल है उसमें अपना इवर्टेड साइरस डालेगा और डाल के अपना स्पर्म को इसमें ट्रांसफर करेगा। वो स्पर्म जो इससे इसमें गया है, वो स्पर्म जाके क्या होगा? इसका स्पर्माथिका में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फीमेल पार्ट तो बाद में डेवलप होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली ये जो फिशोला हेपाटिका है नंबर 2, इसका भी तो इस तरीके का एक मेल पार्ट डेवलप होगा, तो ये अपना मेल पार्ट से क्या करेगा? इसके फीमेल पार्ट में इसका भी तो एक ऐसा फीमेल पार्ट होगा। समझ में आया ना? इस फिशोला हेपाटिका का जो मेल पार्ट होगा वो इसके फीमेल पार्ट में इसी तरीके से सेम स्पर्म दे देगा। दैट मीन्स जब दो फिशोला हेपाटिका का एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर होता है तो इसका भी क्या होता है? मेल पार्ट डेवलप होता है, इसका भी मेल पार्ट डेवलप होता है, इसमें भी फीमेल पार्ट है जो बाद में डेवलप होगा, इसमें भी फीमेल पार्ट है जो बाद में डेवलप होगा। लेकिन जब दोनों एडल्ट का मेल पार्ट डेवलप हो जाएगा तो ये अपना स्पर्म इसको दे देगा, ये अपना स्पर्म इसको दे देगा, और दोनों का फीमेल पार्ट में स्पर्माथिका बोल के एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म का स्टोरिंग
हो सकता है। तो इसने जो इसको अपना स्पर्म दिया ये अपना स्पर्माथिका में स्टोर करके रख लेगा, और इसने जो इसको स्पर्म दिया ये अपना स्पर्माथिका में स्टोर करके रख लेगा। समझ में आया? मतलब जब दोनों हर्माफ्रोडाइट एनिमल, दोनों फिशोला हेपाटिका का एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर होगा, तब दोनों का मेल पार्ट डेवलप होगा, तब ये अपना स्पर्म इसको दे देगा, ये अपना स्पर्म इसको दे देगा। समझ में आया? तो इससे क्या हो जाएगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका स्पर्म इसमें चला गया। अब इसका जब फीमेल पार्ट डेवलप होगा तो उससे एग आएगा, और स्पर्म निकल के आएगा किधर से? स्पर्माथिका से। इस स्पर्माथिका में फिशोला हेपाटिका 1 का स्पर्म है, तो फिशोला हेपाटिका का 1 का स्पर्म विल फर्टिलाइज विद द फिशोला हेपाटिका 2 का एग। समझ में आया ना? तो जब ये फिशोला हेपाटिका नंबर 1 इसका जब मेल पार्ट डेवलप होगा तो इवर्टेड साइरस स्पर्म को लोरेंट्ज कैनल में, ये इवर्टेड साइरस लोरेंट्ज कैनल में फिट होता है और स्पर्म छोड़ देता है। वो स्पर्म जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब इस स्पर्माथिका में जो स्पर्म स्टोर हुआ वो किसका स्पर्म है? फिशोला हेपाटिका नंबर 1 का स्पर्म है। कुछ टाइम बाद, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ टाइम बाद फिशोला हेपाटिका नंबर 2 का ओवेरी क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। फिर ओवेरी यहां से क्या रिलीज करेगा? एग। तो फिशोला हेपाटिका 2 का एग निकल के कहा आएगा? यूटेरस में। उसी टाइम में स्पर्माथिका से निकल के आएगा क्या? स्पर्म। ये स्पर्म किसका है? फिशोला हेपाटिका नंबर 1 का है। तो यहाँ पे यूटेरस में फिशोला हेपाटिका नंबर 1 का स्पर्म एंड फिशोला हेपाटिका नंबर 2 का एग यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? और उसके मिलने से यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम केस को समझ में आया ना? ये समझ में आया? इसको घुमा दो। इस फिशोला हेपाटिका नंबर 2 का जब मेल पार्ट डेवलप हुआ था तो 1 का सेम स्पर्माथिका में स्पर्म डाल के रख दिया। अब 1 का फीमेल पार्ट जब डेवलप होगा तो 1 का फीमेल पार्ट क्या रिलीज करेगा? एग। एंड स्पर्माथिका में फिशोला हेपाटिका 2 का स्पर्म है, वो आएगा, आके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर है। अब हम लोग को पता है कि फीमेल का यूटेरस में एक जाइगोट बनेगा, और वो जो जाइगोट बनेगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के वजह से बनेगा। अब ये जाइगोट का आगे का लाइफ साइकिल क्या होगा ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला डिस्कशन समझ में आया होगा। तो अब देखो, वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म सबको समझ में आ गया। तो उसके आगे का पोर्शन यहाँ पे लिखा है कि इन एडल्ट फिशोला हेपाटिकास यूटेरस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑकर कैसे? यहाँ पे जो स्पर्म है वो स्पर्म फिशोला हेपाटिका 1 का है ना। और ये जो बॉडी है ये पकड़ लो फिशोला हेपाटिका 2 का बॉडी है, ये ओवेरी उसका है, ठीक है। तो यहाँ से एग आएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा, लेकिन ये स्पर्म फिशोला हेपाटिका 1 का है। तो ये दोनों जब यहाँ पे मिलेगा जाइगोट बनेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जाइगोट इज फॉर्म। लाइनिंग ऑफ यूटेरस सीक्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो यूटेरस का अंदर का लेयर है वो कुछ सिक्रेशंस देगा, और वो जो सिक्रेशंस देगा, ठीक है, लाइनिंग ऑफ यूटेरस कुछ सिक्रेशंस देगा, और वो सिक्रेशन की क्या चीज का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, आके जाइगोट के ऊपर ऐसा एक कैप्सूल के जैसा बन जाएगा। जैसे ही जाइगोट के ऊपर एक कैप्सूल के जैसा बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो। अब ये जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? यूटेरस ऑफ फिशोला हेपाटिका, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये हमको पता है ये है प्रेजेंट इन दी यूटेरस ऑफ फिशोला हेपाटिका, ठीक है। और ये फिशोला हेपाटिका जो है ये कहाँ पे है? ये फिशोला हेपाटिका है बाइल डक्ट ऑफ शीप में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि ये जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो है इसको अगर नेक्स्ट स्टेज में जाना है, नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है, तो इसको चाहिए एक अलग एनवायरनमेंट, ठंडा एनवायरनमेंट इसको चाहिए, ठीक है। वो तो कभी भी फिशोला हेपाटिका का यूटेरस में, या वो फिशोला हेपाटिका बाइल डक्ट ऑफ शीप में है, यहाँ पे तो उसको कभी नहीं मिलेगा। हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। बाइल डक्ट में ऑक्सीजन कहां से आएगा? समझ में आया? तो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो नीड्स क्या? इट नीड्स 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बाइल डक्ट ऑफ शिप में कभी भी मिलेगा। शिप का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर बाइल डक्ट ऑफ शिप का 40 डिग्री सेल्सियस है, माने ये फिशोला हेपाटिका भी उस 40 डिग्री सेल्सियस में रह रहा है, माने उस फिशोला हेपाटिका के यूटेरस के अंदर जो ये एम्ब्रायो है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस में रह रहा है। लेकिन इस एम्ब्रायो को अगर नेक्स्ट स्टेज में जाना है उसको क्या चाहिए? ये टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर इस एम्ब्रायो को ना एडल्ट फिशोला हेपाटिका के यूटेरस में रह के मिलेगा,
क्योंकि वो एडल्ट तो यहाँ पे है और यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्लस यही सिर्फ कंडीशन नहीं, और भी कंडीशन है। इसको चाहिए 60% मॉइस्चर, ऐसा कंडीशन जहां पे 60% वाटर का भी प्रेजेंस हो, ठीक है ना। मतलब इसको चाहिए थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मडी वाटर टाइप का चाहिए। हम लोग बंगाली में पैक बोलते हैं, पैक। एसएमईज में नहीं पता क्या बोलते हैं, पैक बोका ये सब हम लोग बंगाली में बोलते हैं, ठीक है। 60% मॉइस्चर चाहिए, प्लस इसको चाहिए हाई एरेशन। हाई एरेशन माने हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी इसको चाहिए। जब ये कंडीशंस मिलेगा किसको, एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो को, तब ये एम्ब्रायो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो ये कंडीशन फेशियोला हेपाटिका के यूटेरस में तो कभी नहीं मिलने वाला है जाइगोट को, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना है। तो ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो क्या करता है, ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो गोज आउट along with the feces of sheep। इसका माने जो ये एडल्ट फेशियोला हेपाटिका है वो अपने यूटेरस से इन एम्ब्रायो को रिलीज कर देगा along with the bile। जब शिप का लीवर बाइल रिलीज करेगा तो ये पकड़ लो, शिप का लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, ये बाइल डक्ट है, यहाँ कहीं पे एडल्ट है। तो एडल्ट क्या करेगा, जब लीवर बाइल छोड़ेगा उस बाइल में एडल्ट अपना एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो भी डाल देगा। तो बाइल एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो को लेके आके कहां गिरेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पोटी के साथ बाहर गोज आउट अलोंग विद द फीसेस ऑफ द शिप, ठीक है। और बाहर जाके 4 to 5 इयर्स तक डोरमेंट स्टेज में पड़ा रह सकता है ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो। क्यों, क्योंकि शिप पोटी कहां करेगा इसका तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है ना। अब शिप ने बोले रेगिस्तान में पोटी कर दिया, अभी रेगिस्तान में ये कंडीशन कभी मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो शिप के पोटी के साथ निकल के उस पोटी में ही 4 to 5 इयर्स तक ऐसे ही पड़ा रह सकता है। और 4 to 5 इयर्स के अंदर कभी भी अगर इस एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो को बीइंग इन द पोटी अगर ये कंडीशन मिलता है तो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ का डिस्कशन समझ में आया होगा। अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही मैंने लिखा है कि एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो कैन स्टे डोरमेंट फॉर अप टू 4 to 5 इयर्स, ठीक है। तुम लोग को मैं इसका नोट भेज दूंगा लाइफ साइकिल का, यहाँ पे बस समझो, ठीक है, कि एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो कैन स्टे डोरमेंट अप टू 4 to 5 इयर्स व्हेन सुइटेबल कंडीशंस आर फॉर्म्ड और आर फाउंड और व्हेनेवर सुइटेबल कंडीशंस अराइव्स, ठीक है। व्हेनेवर सुइटेबल कंडीशंस आर फाउंड और व्हेनेवर सुइटेबल कंडीशन अराइव, तब क्या हो जाएगा, ये जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो है, ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो देखने में कैसा था, वो ग्लाइकोप्रोटीन का कैप्सूल, उसके अंदर में प्रेजेंट है जाइगोट, है ना, उसके अंदर में ऐसे प्रेजेंट है जाइगोट। यही तो था हम लोग का एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो। जैसे ही कंडीशंस मिलेगा तभी ये एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है क्या, मिरासीडियम लार्वा। देखने में कैसा होगा, देखो ग्लाइकोप्रोटीन का कवरिंग अभी भी है, लेकिन अंदर जो एम्ब्रायो है, ठीक है, वो एम्ब्रायो अभी लार्वा बन चुका है, मिरासीडियम लार्वा। वो मिरासीडियम लार्वा ऐसे ऐसे करके कुछ फ्लैजेला जैसा प्रोजेक्शंस निकालता है, और ये जो फ्लैजेला जैसा प्रोजेक्शन है, ये फ्लैजेला जैसा प्रोजेक्शन, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को चीर के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इसके वजह से मिरासीडियम लार्वा जो है, मिरासीडियम लार्वा में एक एबिलिटी आता है, क्या एबिलिटी आता है कि मिरासीडियम लार्वा इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। एंड जब ये फ्री स्विमिंग रहता है तब ये कोई खाना वाना नहीं खाता है, ये स्टार्वेशन करता है, स्टार्विंग कंडीशन में रहता है, बिकॉज दे आर पैरासाइट। इनका खाने का जो भी एबिलिटी है वो एक होस्ट के अंदर घुस के है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जब फ्री स्विमिंग कंडीशन में रहेगा तो ये स्टार्विंग कंडीशन में रहेगा। तो मिरासीडियम लार्वा जब बनता है तो उसके बॉडी से इस तरीके का कुछ फ्लैजेला जैसा प्रोजेक्शन निकलता है, और ये फ्लैजेला के मदद से ये फ्री स्विमिंग करता रहता है, इधर से उधर जाता रहेगा, थोड़ा टाइम मूव करेगा, और उस थोड़ा टाइम में ये स्टार्विंग मोड में रहेगा, कोई खाना वाना नहीं खाएगा, ठीक है। अच्छा, मिरासीडियम लार्वा फ्री स्विमिंग करते करते, ठीक है, मिरासीडियम लार्वा फ्री स्विमिंग करते करते व्हेनेवर it comes in contact with snail secondary host, क्योंकि स्नेल ऐसा कंडीशन में रहता है कि नहीं, ऐसा कंडीशन में जहां पे पानी क्या है, इतना भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, ऐसा जगह पे ही तो कौन रहता है, ऐसा जगह पे ही तो स्नेल रहता है। तो जैसे ही उस जगह पे मूव करते हुए स्नेल के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा
ये मिरासीडियम लार्वा क्या करेगा, ML लिख देता हूं, ठीक है। मिरासीडियम लार्वा बोर्स थ्रू द स्किन ऑफ स्नेल, इट बोर्स थ्रू द स्किन ऑफ स्नेल एंड रीचेस द मसल्स नियर बाय क्या, एलिमेंट्री कैनल। यहां पे ही तो होता है लार्वा का डेवलपमेंट, मैंने लिखा था सेकेंडरी होस्ट के बॉडी के अंदर, देखो घुस गया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम स्विम करेगा, यहां वहां जाएगा, स्टार्विंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही स्नेल के कांटेक्ट में आएगा ये लार्वा बोर करके स्नेल के बॉडी के अंदर घुस जाएगा और घुस के कहां पहुंच जाएगा, स्नेल के एलिमेंट्री कैनल के आसपास का जो मसल्स है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे पहुंच के क्या करेगा, वहां पे पहुंच के, अभी लिखता हूं, ठीक है, वहां पे पहुंच के ये क्या हो जाएगा, ये मिरासीडियम लार्वा बिकम्स स्पोरोसिस्ट लार्वा, ठीक है। मिरासीडियम लार्वा जैसे स्नेल के बॉडी के अंदर घुसता है, घुस के क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, दूसरा लार्वल स्टेज में पहुंच जाता है जिसका नाम क्या है, स्पोरोसिस लार्वा। नाउ स्पोरोसिस लार्वा देखने में कैसा होगा, बस जैसे कि ये मिरासीडियम लार्वा है, इसको अगर मैं स्पोरोसिस बनाऊं तो स्पोरोसिस में यहाँ पे इस तरीके का माउथ जैसा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे माउथ का जैसा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको हम लोग बुलाएंगे स्पोरोसिस लार्वा। सो दिस इज हाउ SL स्पोरोसिस लार्वा लुक्स लाइक। माउथ यहाँ पे नहीं होगा, ये बंद होगा, ठीक है, तो मिरासीडियम लार्वा, दिस इज हाउ स्पोरोसिस लार्वा लुक्स लाइक। अब ये स्पोरोसिस लार्वा क्या करेगा, स्पोरोसिस लार्वा feeds on snail's tissue and grows in size, ठीक है। ये जो जगह है मसल्स नियर बाय एलिमेंट्री कैनल, वहां पे ये स्पोरोसिस लार्वा, ठीक है ना, ये स्पोरोसिस लार्वा वहां पे रहेगा और रह के वहां पे क्या करेगा, आसपास का जो टिश्यू है, आसपास का जो मसल्स है उसको खाएगा, खा के ग्रो करेगा, अपना साइज बड़ा करेगा। उसके बाद ग्रो करने के बाद ये क्या करेगा, ग्रो करने के बाद ये करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैंने लिखा था कि सेकेंडरी बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये करता है अपने बॉडी के अंदर मल्टीपल फिजन, एंड मल्टीपल फिजन करने के वजह से एक एक स्पोरोसिस लार्वा के अंदर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इनसाइड वन स्पोरोसिस लार्वा, ठीक है, मोटा मोटी 5 to 8 रेडिये लार्वा आर फॉर्म्ड, ठीक है। एक एक स्पोरोसिस लार्वा ये जो है, ठीक है, अभी भी ऐसा है, स्पोरोसिस लार्वा का ये कवरिंग अभी भी है, यहाँ पे माउथ था, ठीक है, तो वो माउथ का रीजन ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो अंदर का रीजन है, वो अंदर का रीजन ने मल्टीपल फ्यूजन किया है, जिसके वजह से ये अंदर का रीजन इस तरीके का सेवरल, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग रेडिये लार्वा बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये रेडिये लार्वा क्या करेगा, रेडिये लार्वा ब्रेक्स द सिस्ट कवरिंग, ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का कवरिंग था, ठीक है, इस सिस्ट कवरिंग को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ब्रेक्स द सिस्ट कवरिंग एंड कम्स आउट, ठीक है, ये सब तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, ऐसे तोड़ देगा, तोड़ के ये लोग यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाहर आके क्या करेगा, ये रेडिया लार्वा फीड्स ऑन, ठीक है, ये रेडिया लार्वा फीड्स ऑन स्नेल्स टिश्यू, वापस से ये रेडिया लार्वा स्नेल का टिश्यू वापस से खाना शुरू करेगा। बीच में थोड़ा सा पॉज होगा, कब पॉज होगा, जब सरकारिया लार्वा रेडिया लार्वा बना रहा होगा, तब थोड़ा टाइम के लिए खाना पॉज रहेगा। बन गया रेडिया लार्वा, एक एक्सपोरोसिस लार्वा के अंदर 5 to 8 रेडिया लार्वा बना। उसके बाद रेडिया लार्वा क्या करेगा, ये जो कवरिंग है जो मदर का यूटेरस से लगा हुआ था, उस कवरिंग को तोड़ देगा, तोड़ के बाहर आएगा, बाहर आके ये लोग इंडिविजुअली स्नेल का टिश्यूज खाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली स्नेल का टिश्यू खाने के बाद क्या होगा, इंडिविजुअली स्नेल का टिश्यू खाने के बाद, ठीक है, वन रेडिया लार्वा बिकम्स
एक एक रेडिया लार्वा में फिर से कुछ चेंज आएगा, ठीक है। ये क्या लार्वा बन जाएगा, ये बन जाएगा एक लार्वा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सार्कारिया लार्वा, ठीक है। तो ईच रेडिया लार्वा विल कन्वर्ट इटसेल्फ एंड इट विल बिकम सार्कारिया लार्वा, ठीक है। यहां तक आई होप तुम लोग को समझ में आया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सार्कारिया लार्वा जो है, ये सार्कारिया लार्वा का नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट फिर से ओपन एटमॉस्फेयर में होगा। जैसे कि मिरासीडियम लार्वा का डेवलपमेंट ओपन एटमॉस्फेयर में हुआ, फिर मिरासीडियम लार्वा स्नेल के बॉडी में घुसा, घुस के स्पोरोसिस लार्वा, रेडिया लार्वा, सार्कारिया लार्वा, ये स्नेल के बॉडी के अंदर ये लार्वल स्टेजेस आया है। इसके आगे का जो स्टेज है वो, इसके आगे का स्टेज तभी बन सकता है जब ये फिर से बाहर फ्री एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है। सो टू गो या टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स इसको अगर नेक्स्ट स्टेज में जाना है, टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस माने इसको अपना मॉर्फोलॉजी चेंज करना है, नेक्स्ट लेवल का लार्वा बनना है। सो टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इट नीड्स, इसको वापस से चाहिए क्या, 9 to 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, प्लस इसको चाहिए हाई एरेशन, फिर से हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत है, प्लस यू कैन से नियर अबाउट 70% मॉइस्चर का भी जरूरत है। ये सब का जरूरत है इसको, ये कंडीशन इसको फिर से चाहिए, तभी ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो ये कंडीशन तो स्नेल के मसल्स में रह के तो कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सार्कारिया लार्वा क्या होगा, जैसे ये कंडीशन बाहर सार्कारिया लार्वा को फील होगा कि बाहर ये कंडीशन है, तो सार्कारिया लार्वा क्या करेगा, सार्कारिया लार्वा इमर्जेस आउट ऑफ दी, जैसे बोर करके घुसा था वैसे ही बोर करके वापस बाहर आ जाएगा। सार्कारिया लार्वा इमर्जेस आउट ऑफ द स्नेल्स बॉडी व्हेन द सुइटेबल कंडीशंस आर फाउंड। जैसे ही बाहर सुइटेबल कंडीशन बनेगा, मतलब ऐसा कंडीशन बनेगा और उसको फील होगा कि नहीं बाहर अभी सुइटेबल कंडीशन है, तो टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का, स्नेल से विदा लेगा, बोर करके वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आके सार्कारिया लार्वा बिकम्स क्या, सार्कारिया लार्वा बिकम्स मेटा सार्कारिया लार्वा, नेक्स्ट लार्वल स्टेज में पहुंच जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही बाहर निकल के मिलेगा नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल का नाम क्या है, मेटा सार्कारिया लार्वा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा नाम लिखा है, मैं एमएल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मिरासीडियम लार्वा में एमएल लिखा है। तो सार्कारिया लार्वा बिकम्स मेटा सार्कारिया लार्वा। अब ये जो मेटा सार्कारिया लार्वा है, मेटा सार्कारिया लार्वा स्टेज फ्री स्विमिंग, ठीक है, स्टेज फ्री स्विमिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ये वापस से ये जो पानी है 70% मॉइस्चर उधर में क्या करेगा, पूरा घूमेगा, फ्री स्विमिंग फॉर सम टाइम, एंड देन उसके बाद क्या करेगा, देन अटैचेस इटसेल्फ टू ग्रास, ठीक है। पानी के आसपास, पानी का जो सोर्स होता है उसके आसपास ग्रासेस होता है, फिर अपने आप को ले जाके ग्रास में चिपका लेगा, ग्रास में अटैच कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही मेटासार्कारिया लार्वा अपने आप को ग्रास में अटैच करेगा, जैसे ही अपने आप को ग्रास में अटैच करेगा, उसके बाद क्या होगा, ग्रास को खाने आएगा कौन, ठीक है। तो अब ठीक है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द ग्रास, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेटासार्कारिया लार्वा बिफोर या आफ्टर अटैचमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। मेटासार्कारिया लार्वा आफ्टर अटैचमेंट विद द ग्रास के साथ अपने आप को अटैच करने के बाद, ठीक है, इट फॉर्म्स अ कैप्सुलेटेड कवरिंग, इट फॉर्म्स अ कैप्सुलेटेड कवरिंग ओवर इटसेल्फ, ठीक है। मेटासार्कारिया लार्वा अपने ऊपर फिर से एक सिस्ट के जैसा कवरिंग फॉर्म करेगा, अपने ऊपर ग्रास में अटैच करेगा, पहले अपने आप को घूमेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, ये कंडीशन में सार्कारिया लार्वा बाहर निकलेगा, निकल के जैसे ये कंडीशन मिलेगा तुरंत मेटासार्कारिया लार्वा बन जाएगा। मेटासार्कारिया लार्वा घूमेगा, घूम के ग्रास ढूंढेगा, जैसे ग्रास मिलेगा ग्रास में अपने आप को अटैच कर लेगा और अटैच करके अपने ऊपर फिर से कवरिंग चढ़ा लेगा, ठीक है। अब इस ग्रास को खाने कौन आएगा,
व्हेन शीप फीड्स ऑन दीज ग्रासेस, अब जब शीप ये ग्रासेस खाएगा, इस ग्रासेस के साथ ये लार्वा भी शीप के अंदर चला गया, और शीप जब ग्रासेस को खाएगा तो ग्रासेस माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन पहुंचेगा। तो स्टोमक, शीप का स्टोमक से होते हुए इस ग्रासेस को, और इस ग्रासेस के साथ साथ इस मेटासार्कारिया लार्वा को शीप के स्टोमक से होते हुए गुजरना पड़ेगा। एंड स्टोमक में कौन प्रेजेंट है? HCl। शीप का HCl प्रेजेंट होगा स्टोमक में। उस HCl से इस लार्वा को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए देखो, ग्रास में अटैच करने के तुरंत बाद इसने क्या किया, अपने ऊपर एक कैप्सुलेटेड कवरिंग चढ़ा लिया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर अभी एडल्ट बनना है तो मुझे वापस से शीप के बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, और मुझे अगर वापस से शीप के बॉडी के अंदर जाना पड़े तो शीप मुझे जब खाएगा ग्रास के साथ, तभी मैं उसके बॉडी के अंदर जा पाऊंगा। तो जब वो खाएगा तो मुझे क्या होगा, स्टोमक के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा। स्टोमक में शीप का HCl है, हाईली एसिडिक, वो एसिड तो मुझे मार देगा, उस एसिड से मुझे खुद को बचाना पड़ेगा। तो कैसे बचाऊंगा? इसलिए मैं पहले से ही कैप्सूल चढ़ा अपने ऊपर लगा लेता हूं, लगा के मैं बैठा रहता हूं कि शीप जब खाएगा मैं आराम से उसका स्टोमक का HCl को क्रॉस करके चला जाऊंगा, क्योंकि ये कैप्सूल मुझे उस HCl से बचाएगा। ठीक है। सो व्हेन शीप फीड्स ऑन दिस ग्रासेस, हम लोग लिखेंगे मेटासार्कारिया लार्वा सेफली क्रॉसेस द स्टोमक, आराम से स्टोमक क्रॉस करेगा, एंड रीचेस दी, कहा, रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। देखो, शीप का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मेटासार्कारिया लार्वा पहुंच गया है। ठीक है। अब क्या होगा, शीप का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पहुंच गया। अब हम लोग देखेंगे ये मेटासार्कारिया लार्वा, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम्स, इंटेस्टिनल एंजाइम्स ऑफ शीप digests, or you can say removes, the capsulated covering of मेटासार्कारिया लार्वा। ठीक है। स्टोमक से तो कैप्सूल ने बचा लिया, अब जैसे ही वो कैप्सूल के साथ कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में शीप का जो एंजाइम्स आया, उन एंजाइम्स ने कैप्सूल को डाइजेस्ट कर लिया, बिकॉज कैप्सूल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये दोनों का डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइन में तो होगा ही, तो वो इंटेस्टाइन का एंजाइम्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो कवरिंग मेटासार्कारिया ने अपने ऊपर चढ़ाया था, उसको खा जाएगा। खाने के साथ साथ मेटासार्कारिया लार्वा, ML माने मेटासार्कारिया लार्वा, हाँ, कम्स इन कांटेक्ट विथ, क्या, इट कम्स इन कांटेक्ट विथ शीप्स बाइल। शीप का बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां पे शीप के बाइल के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, मेटासार्कारिया लार्वा क्या बन जाएगा, बिकम्स एक्टिव। फिर मेटासार्कारिया लार्वा क्या करेगा, बोर्स थ्रू दी, क्या, इंटेस्टिनल वॉल ऑफ कॉर्न, शीप, शीप का इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू बोर करके घुस जाएगा, और बोर करके घुस के कहां पहुंच जाएगा, मेटासार्कारिया लार्वा रीचेस कहा, बाइल डक्ट ऑफ शीप। ठीक है। कहां पहुंच गया, शीप का बाइल डक्ट में पहुंच गया, और अभी शीप का बाइल डक्ट में पहुंच के क्या करेगा, ये मेटासार्कारिया लार्वा फीड्स ऑन बाइल एंड फीड्स ऑन बाइल प्लस, यहां पे लिख सकते हो लिवर टिश्यूज, लिवर का टिश्यूज को भी खाएगा शीप का, फीड्स ऑन बाइल प्लस लिवर टिश्यूज ऑफ शीप, एंड बिकम्स, ये सब खा खा के क्या बन जाएगा, बिकम्स एडल्ट। देखो, घूम फिर के कहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, एडल्ट बन गया। कहां पे, शीप का बाइल डक्ट में पहुंच के। अब वहां पे रह के ही क्या करेगा, वहां पे रह के ही अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करेगा, फिर दो फेशियोला हेपाटिका एक दूसरे को म्यूचुअली स्पर्म एक्सचेंज करेगा, फीमेल पार्ट डेवलप होगा, फर्टिलाइज एग्स बनेगा, और फिर वो फर्टिलाइज एग्स बाइल से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, पोटी से होते हुए बाहर निकल के मिरासिडियम लार्वा, आगे का स्पीचेस। तो ये लाइफ साइकिल एक साइकिल के जैसा है, घूम फिर के हम लोग वहां पे ही पहुंच के, देखो, एडल्ट लिविंग इन द बाइल डक्ट, और यहाँ पे रह के ये एडल्ट जो है, ये एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर होगा, और मैच्योर होके फिर साइकिल को फिर से चलाना शुरू कर देगा। ठीक है।
तो इस लाइफ साइकिल का नोट मैं तुम लोग को दे दूंगा। नोट तुम लोग तो इसका नोट मैं तुम लोग को दे दूंगा। थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। कैसे एडल्ट से कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से कैसे फिर से घूमते हुए डिफरेंट लार्वल स्टेजेस होते हुए एक अलग होस्ट के बॉडी में जाके वहां से निकल के फिर प्राइमरी होस्ट के बॉडी में आके फिर एडल्ट बनना, फिर सेम प्रोसेस करना, फिर निकलना, फिर सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में जाना। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। तो दिस इज योर लाइफ साइकिल ऑफ फिशोला हेपाटिका। इस तरीके का हम लोग को इस फाइलम में और 2 लाइफ साइकिल पढ़ना था, टीनिया सोलियम का एंड स्किस्टोसोमा जो पढ़ाया है उसका भी पढ़ना था, लेकिन अभी तो नहीं होगा, बाद में कभी पढ़ाऊंगा टाइम होने से, जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया है एंड यहाँ तक ही अभी प्लेटीहेल्मिन्थ्स को मैं रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू एस्केल्मिन्थ्स। तो टुडे यहाँ पे आई एम फिनिशिंग ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थ्स and few things which are left like life cycle of other 2 animals, these things we will do later. क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ तक ही अच्छे से कर लो, बहुत है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना, मैं एक और वो लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, डाउट क्लास लगा सकता हूँ तुम लोग का एग्जाम से पहले। अगर डाउट हुआ तो सैटरडे को हम लोग एक डाउट क्लास कंडक्ट कर सकते हैं एंड उसमें हम लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसका अच्छे से नोट बना लो और लाइफ साइकिल का नोट मैं अटैच कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो वहां से देख लेना, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, डाउट होने से पूछने का। हाँ चलो बाय बाय।